गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट की थी और जिसमें हमने टाइप ऑफ बॉन्ड्स सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिए थे। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड आफ्टर दैट हाइब्रिडाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम बताया था कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? द फर्स्ट पॉइंट इज it is formed by overlap of orbitals along sigma bond is it is formed by overlapping along internuclear axis, overlapping along internuclear axis or formed by axial overlapping. Second, first point of difference is it is formed by pi bond is formed by sideways overlapping. Second point, sigma bond involves SS, SP and PP overlapping, whereas pi bond involves PP overlappings only. Pi bond involves PP overlappings only. Third point of difference, in sigma bond overlapping is overlapping is to large extent, not along. Overlapping is to large extent, whereas in pi bond in pi bond overlapping is to small extent. In pi bond overlapping is to small extent. Sigma bond is strong bond. It is strong bond, whereas pi bond is comparatively वीक बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है. नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, a sigma bond without pi bond can exist between two atoms. A sigma bond without pi bond can exist means a sigma bond between two carbon atoms or between two atoms exist, whereas a pi bond without sigma कैन नॉट एग्जिस्ट. पहला बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड अगर है तो वापस सिग्मा ही होगा, पाई हो ही नहीं सकता. विदाउट सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं. तो डबल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा. ट्रिपल होगा तो उसमें एक सिग्मा और बाकी दो पाई बॉन्ड होते हैं ट्रिपल में. तो ए सिग्मा बॉन्ड विदाउट पाई बॉन्ड एग्जिस्ट, बट ए पाई बॉन्ड विदाउट सिग्मा बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट.
free rotation along sigma bond is possible. या फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है आपका तो रोटेशन पॉसिबल होती है. सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल while 6 point of difference. Free rotation about pi bond is not possible. Free rotation along about pi bond is not possible. Pi bond is not possible. Sigma bond involves only one electron cloud about the internuclear axis. Last point of difference 7. Sigma bond involves one electron cloud symmetrical about internuclear axis, whereas pi bond involves two electron clouds one above and one below the plane of atomic nuclei, जिस प्लेन में एटॉमिक न्यूक्लियस होता है उसके एक ऊपर और एक नीचे दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, जैसा कि आपको हमने पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग जब आपको दिखाई थी. ये देखिए आपको यहाँ पर आपके दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं जो मैंने येलो कलर में शो किया है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड येलो कलर अबो एंड बिलो द प्लेन ऑफ द न्यूक्लियाई, वेयर एज इन सिग्मा बॉन्ड देर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच इज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस. सिर्फ एक ही आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है सिग्मा बॉन्ड में. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन sigma and pi bond, which is very important questions. Now next we are going to start hybridization. Hybridization is also again very important question. Hybridization. Now first of all, what do you mean by hybridization? It involves hybridization involves intermixing of two or more atomic orbitals. Intermixing of two or more atomic orbitals of slightly different energies थोड़ा एनर्जी में डिफरेंस हो सकता है, बट ऑफ सेम एटम, एक ही एटम के स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जी ऐसी ऑर्बिटल्स दे अंडरगोज इंटरमिक्सिंग so that result in formation of इक्वल नंबर ऑफ, जितने मिक्स होंगे उतने ही इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स having same energy, size and shape. Having same energy, size and shape. So what is hybridization? Hybridization is mixing of
two or more atomic orbitals of slightly different energy of the same atom, एक ही एटम के स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स दे अंडरगोज इंटरमिक्सिंग, वो मिक्स हो जाते हैं एंड देन प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स विच आर विच हैव सेम एनर्जी साइज एंड शेप. एग्जाम्पल अगर हम लें, टाइप है जो इसमें आपकी टाइप, एक तो आपको बताते हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे आपके, हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो शेप होती है सभी की एक जैसी शेप होती है. एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ टू लॉब्स, वन लार्ज एंड वन स्मॉल. हाइब्रिड ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ टू लॉब्स, वन लार्ज एंड वन स्मॉल. हमने आपको डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल बताए. एस ऑर्बिटल्स दे आर स्फेरिकल इन शेप, पी ऑर्बिटल्स आर डम्बल इन शेप विच कंसिस्ट ऑफ टू lobes of equal size, whereas d orbitals consist of double dumbbell shape which have four lobes of equal size. But hybrid orbitals, न्यू ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको बोलते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव ओनली वन शेप विच कंसिस्ट ऑफ टू lobes, वन लार्ज एंड वन स्मॉल. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे सेम शेप के होते हैं. तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अब क्या है, हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में भी sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 or sp3d3. These are the types of hybridizations. Now let us take one by one. sp, hybridization of hybridization of 1s and 1p orbitals. Hybridization of 1s, intermixing of 1s and 1p orbitals is called sp hybridization. Now in this hybridization two orbitals overlap, 1s and 1p, एक s और एक p orbital, they undergo intermixing. Now 1s and 1p orbitals, now these two when undergoes hybridization, sp hybridization, it will result in formation of two orbitals. When two orbitals intermix, new orbitals will also produced, the new orbital produced will also be 2. तो दो नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, वन each orbital will have one large lobe and one small lobe first, and both the two orbitals will be at an angle 180 degree to each other. तो दोनों ऑर्बिटल सेम साइज के होंगे, सेम शेप के होंगे, इस तरह से. और जो बॉन्ड एंगल होगा उनके बीच में 180 का होगा. नेम ऑफ द शेप विल बी लीनियर. नाउ सेकंड sp2 hybridization. This involves 1s and 2p orbitals. एक s और दो p orbitals, तो px py हो, जो भी orbitals आपके हैं, py pz है, all these three orbitals will overlap and will produce three new orbitals. Now these three new orbitals all will have same shape, that is one orbital large and one large lobe and one small lobe, and these three orbitals will be at an angle of 120 degree with each other, and shape of the molecule will be, this time शेप आपकी वही है जो आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ी थी, ट्रायंगुलर
triangular planar. Next, sp3 hybridization. It involves 1s and 3 p orbitals. Intermixing of 1s and 3 p orbital is called sp3, and 1s and 3 p orbital, px, py and pz. They undergoes intermixing and produce 4 new orbitals, and these 4 new orbitals again will have two lobes. Each will have two lobes, one large and one small, and they will be at an angle of 109 degree 28 109 degree and 28 minutes from each other. Name of the shape again same as in Vespers theory. It is tetrahedral. The name of the shape will be tetrahedral. Next is sp3d. sp3d, 1s 1s plus 3 3p and 1d orbitals undergoes mixing and produce 5 new orbitals, and out of these 5 new orbitals 3 will be in one plane at an angle of 120 degree from each other. The 3 will be at an angle of 120 degree from each other. All the angles will be 120 degree. One orbitals will be at right angle above the plane, and other will be at right angle below the plane. The name of the shape, as you have already done in Vespers theory also, trigonal bipyramid. Trigonal bipyramid. Trigonal bipyramid is the name of shape. शेप के नेम वही हैं, लॉन पेयर इसमें होंगे तो आपकी शेप भी वैसी चीज हो जाएगी. जैसे इसके अंदर अगर एक लोन पेयर अगर आपका जाता है तो सीसा हो जाएगी, दो लोन पेयर आ जाएगी तो टी शेप, एंड इफ देयर आर 3 लोन पेयर्स देन शेप विल बी लीनियर. नाउ इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 means there will be 6 orbitals involved in hybridization. Out of 6, 1s, 3p and 2d orbitals. Total 6 orbitals will be involved in hybridization. Total there will be 6 orbitals, and when 6 orbitals involved in hybridization, the shape is again as in Vespers theory, octahedral. 4 in one plane. The 4 orbitals will be present in one plane. One orbital will present above the plane and one will present below the plane. तो इस तरह से 6 orbitals will be involved in hybridization, and the name of the shape will be octahedral. Similarly, one more hybridization may be there, which is sp3d3. Now it involves 7 orbitals, 5 will be in one plane. The name of the shape will be pentagonal bipyramid. The 5 will be in one plane. This is pentagonal
and one will be present above the plane and one will present below the plane. तो इस तरह से ये आपका जो प्लेन दिखा रखा है मैंने, ये बिलो द प्लेन है, इस प्लेन के नीचे। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। So how can we calculate the hybridization? Now the question is, how can we calculate hybridization of a molecule? क्वेश्चन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें जरूर आते हैं आपके, कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन या एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ए मोलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे आपको कैलकुलेट करनी है, इसके लिए आपका एक तरीका तो जो मैंने आपको पहले बताया, आपको जैसा कि हमने आपको नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर निकालने में बताया था, वही मेथड है, डिवाइड बाई 8 और डिवाइड बाई 2, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 8 और डिवाइड बाई 2, उससे भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। इफ यू आर x is the total number of electrons, let x is total number of electron, if it is less than 8 or equal to 8 then divide it by 2, quotient 1 and रिमाइंडर, जो भी आपका वैल्यूज आएगी यहाँ, जो आपकी रिमाइंडर आएगी, तो n is equal to q1 प्लस रिमाइंडर। और इफ इलेक्ट्रॉन्स आर more than 8 then divide the valence electron divided by 8, quotient 1, remainder 1, divide the remainder 1 by 2, quotient 2, and then remainder 2, then n will be equal to quotient 1 plus quotient 2 plus remainder 2, and this n will gives you the hybridization. This n will gives you hybridization if value of n is, if n is equal to 2 then hybridization is sp, 3 sp2, 4 sp3, 5 hybridization is sp3d, and if it is 6 hybridization is sp3d2, 7 then sp3d3. Another method of calculation of hybridization is, hybridization is equal to half of number of valence electron on central atom, number of valence electron on central atom plus number of monovalent atom attached plus charge on anion plus charge on anion minus charge on cation. One more method is this for the calculation of hybridization. Hybridization can be calculated by valence electron, total valence electron on the central atom plus number of monovalent atom attached प्लस चार्ज ऑन एनायन, नेगेटिव आयन पर जितना चार्ज है वो ऐड कर दिया जाता है और पॉजिटिव पर जितना चार्ज है वो माइनस कर दिया जाता है, और इन सब का सम करके देन डिवाइड बाई 2, देन इट गिव्स अस हाइब्रिडाइजेशन. लेट अस टेक एन एग्जांपल. लेट वी हैव एन एग्जांपल BeF2. I am giving you both example. Hybridization is equal to beryllium has central valence electron 2, half of 2 valence electron on the beryllium plus number of monovalent atom attached with the beryllium. There are 2 atom attached with beryllium, so number of atom attached is 2 monovalent atom, ये भी ध्यान रखना है,
प्लस चार्ज ऑन एनायन, इस पर कोई चार्ज नहीं है, सो चार्ज ऑन एनायन इज 0 एंड चार्ज ऑन कैटायन इज आल्सो 0, सो 1/2 into 4 comes 2, so hybridization is sp, value is 2, so hybridization is sp। अगर मैं अपना जो दूसरा मेथड है जिससे हमने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाले थे, आप उससे भी लें तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन हैव 7, तो 7 into 14 plus 2 there are 16 valence electron divided by 8, 8 to the 16, so value comes to be 2। रिमाइंडर यहाँ पर कुछ नहीं है तो आगे कुछ डिवाइड नहीं करेंगे हम, सो अगेन हाइब्रिडाइजेशन इज sp। सो sp हाइब्रिडाइजेशन मीन्स शेप ऑफ द मोलिक्यूल विल बी लीनियर, sp हाइब्रिडाइजेशन मीन्स शेप ऑफ द मोलिक्यूल विल बी लीनियर। नेक्स्ट और एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, लेट इट इज CH4 valence electron, half of valence electron on the carbon is 4, number of atom attached hydrogen 4 plus charge 0 minus charge on anion, cation is also 0, there is no charge on it, so again value come to, this time value comes to be 4, hybridization is sp3। let us take an example of ClO3 negative, ClO3 negative। now half of valence electron in chlorine 7, number of monovalent atom attached, this time monovalent atom attached is 0। ध्यान रखना जो आपका ऑक्सीजन है ये डाईवैलेंट में आता है, मोनोवैलेंट में नहीं आता, तो monovalent atom attached is 0, negative charge, this time it has 1 negative charge, sorry ClO3 negative है, so it have 1 negative charge and there is no positive charge, again hybridization comes to be sp3। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट की जा सकती है। अगर मैं इसमें दूसरा अपना मेथड अप्लाई करूं, दूसरा मेथड में हम अप्लाई कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 7, ऑक्सीजन 6 into 3, तो ये आपका हो गया टोटल 7, 18 एंड देयर इज 1 नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज आल्सो प्रेजेंट, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे 26, सो 26 डिवाइड बाई 8, 8 3 जा 24, रिमाइंडर 2 रिमाइंडर इज डिवाइड बाई अगेन 2 एंड इट इज 2 0, तो 3 + 1 + 0 4 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन sp3। तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसके लिए ज़रा प्रैक्टिस करेंगे, मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें आपको सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है। CO3 2 नेगेटिव, CO2 XeOF 4 XeF6, sorry it is XeF6, XeF6, XeO3, XeO4 and H2O, ClO4 नेगेटिव, SF6, अमोनिया NH3। तो इन कुछ एग्जाम्पल्स की आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है। इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपसे करवा रहा हूँ XeOF4। थोड़ा सा इसमें आपको ये भी ध्यान रखना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो वो थोड़ा सा आपको मैं करवा रहा हूँ। XeOF4 अब कैसे करनी है ज़रा वो आप इस एग्जाम्पल से समझेंगे। XeOF4, now xenon is the central atom which have configuration 5s2 and 5p6, 5s2 5p6। now first of all we will calculate roughly the hybridization। xenon valence electron 8,
oxygen 6 and fluorine have 7 into 4 means 28. The total valence electrons are 28 plus 6 34, 34 plus 8 42. The total valence electrons are 42. Then divide the 42 by 8. 8 5s are 40. 2 is divided by 2. 1 2 0. So 5 plus 1 plus 1 is 5 plus 1 plus 0. Remainder is 0. 5 plus 1 plus 0. So it is 6. So it will have 6 means sp3d2 hybridization, and 6 minus, since there are total 5 atoms attached, total atom attached are 5. Total atom attached are 5. So 6 minus 5, 6 minus 5, there will be one lone pair. There will be one lone pair. तो ये चीज़ हमें पहले अपने रफ कैलकुलेट कर लेनी है. उसके बाद दिखाएंगे पहले हम ग्राउंड स्टेट. दिस इज ग्राउंड स्टेट एंड नाउ वी विल शो एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट क्यों दिखानी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो लॉन पेयर है वो एक आ रहा है, तो हमें पेयर सिर्फ एक ही रखना है. ये आपका 5D है, 5S 5P एंड नाउ दिस इज 5D. अब एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक ही पेयर रखेंगे. बाकी जो हमारे ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन या 3 ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन सिंगल रखेंगे, पेयर नहीं करेंगे. ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये हमारे आगे एक्साइट हो जाएंगे. दीज 3 इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड टू द हायर ऑर्बिटल्स. These 3 electrons will be excited to the higher orbitals. क्योंकि पेयर हमें एक रखना है. लोन पेयर जो हमने अपने रफ कैलकुलेशन की उसमें मेरा लोन पेयर एक आया है, तो मुझे पेयर सिर्फ एक ही रखना है. बाकी इलेक्ट्रॉन हम आगे एक्साइट करेंगे, जैसा कि ये हमने एग्जांपल दिया है. अब हाइब्रिडाइजेशन मेरी आई है sp3d2. हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2. तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिडाइजेशन होंगे और शेप आपकी बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल. sp3d2 में हमने बताया था आपको शेप जो होगी मॉलिक्यूल की वो ऑक्टाहेड्रल होगी. ऑक्टाहेड्रल एंड आउट ऑफ दिस ऑक्टाहेड्रल शेप आउट ऑफ दिस 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वन विल हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक में लोन पेयर होगा और 5 जो है वो आपके हाफ फील्ड होंगे. तो जो शेप का नाम है आपका स्क्वायर प्लेनर आएगा, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल. आपको वेस्पर थ्योरी में बताया था कि जब आपके आउट ऑफ 6 इफ देयर इज वन लोन पेयर देन स्क्वायर पिरामिड, और अगर 2 लोन पेयर तो स्क्वायर प्लेनर. तो यहाँ एक लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिड हो जाएगी. और दूसरा बात इसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ऑर्बिटल इसमें हमारा ऐसा भी है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. This is the orbital which is not involved in hybridization. It will always make pi bond. तो ये जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आई, आउट ऑफ 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 5 will overlap with fluorine. 5 will overlap with fluorine. अगर आपका सेंट्रल एटम जीनोन है तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन के साथ ओवरलैप कर जाएंगे और एक आपका रहेगा 4 विद फ्लोरीन. 4 विल ओवरलैप विद फ्लोरीन एंड 1 विद ऑक्सीजन. जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर आपका नीचे लोन पेयर रहेगा. तो XeF4 हमारा मॉलिक्यूल है XeOF4. तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल ओवरलैप विद 4 फ्लोरीन, 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल ओवरलैप विद 1 ऑक्सीजन. और जो हमारा एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये वाला,
इट विल मेक्स पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। फ्लोरीन कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, तो वो हमारा पाई बॉन्ड बनाएगा। अगर हमारे हाइब्रिडाइजेशन में एक से ज़्यादा बॉन्ड आ जाते हैं, सॉरी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाते हैं, तो वो अगर दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हाफ फील्ड है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ये ऑर्बिटल जो है मेरा हाइब्रिड है, दिस ऑर्बिटल इज हाइब्रिड, सॉरी हाफ फील्ड है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। यहाँ सिर्फ एक था तो एक पाई बॉन्ड हो गया, एक से ज़्यादा होंगे तो एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ XeO4 का, XeO4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनोन 8, ऑक्सीजन 6 × 4 32 डिवाइड बाई 8, 8 4 जा 32, 0 तो 4 + 0 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 लोन पेयर will be equal to 4 minus, there are 4 atom attached, 4 minus 4 0, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। जीरो के साथ चार एटम अटैच हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp3 n की वैल्यू हमारी 4 आई है, द वैल्यू ऑफ n इज 4, सो हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड 4 माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच 4 इज इक्वल टू 0 लोन पेयर। तो यहाँ जब हम आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ध्यान रखना है आपको। पहले दिखाएंगे हम ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जिनोन 5s2 5p6, 5s2 एंड 5p6, दिस इज 5s2 5p6। लेकिन हमने जो अपने रफ कैलकुलेशन किया वहां पर एक भी पेयर नहीं है, तो एक्साइटेड स्टेट में हम इलेक्ट्रॉन्स को आगे एक्साइट करेंगे, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लोन पेयर में हमारा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम सभी के इलेक्ट्रॉन्स, इन चारों ऑर्बिटल्स के एक एक इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट कर देंगे। 4 इलेक्ट्रॉन, चारों के इलेक्ट्रॉन एक एक आगे एक्साइट कर दिए जाएंगे। तो दिस इज अवर एक्साइटेड स्टेट। नाउ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो इसमें ध्यान रखना 4 ऑर्बिटल हमारे ऐसे आ गए जो कि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो 4 पाई बॉन्ड बनेंगे। अब ये हमारे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपके शेप जो है टेट्राहेड्रल होगी, 1 2 3 एंड 4। Now these half-filled or hybrid orbital will overlap with the half-filled orbitals of oxygen and will make tetrahedral shape. And 4 pi bond, all the oxygen atom will make a pi bond. So this will be the shape of the molecule. तो इस तरह से हमें शेप और हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल्स की निकालनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर करेंगे। थैंक यू।